Our top focus continues to remain on Manipur crisis, where the state remains on edge as the deadlock over Manipur continues in the monsoon session of Parliament. A delegation of the Opposition Alliance India will be travelling to Manipur for a two-day visit. The aim is to mount pressure on the government in the run-up to the no-confidence motion discussion in the Parliament. A 20-member team of the opposition will visit the epicenter of the crisis in Churachandpur and also visit relief camps in Imphal. Remember, an all-party delegation to the state was one of the opposition's demands, the others being that the Prime Minister be present on the floor of the House during a debate and that President's rule be imposed in Manipur as well. Meanwhile, the National Commission for Women is slated to submit its report to the government after meeting victims from both tribes. कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? तो देश में शासन कर चुकी है। अगर बहस चलती तो इनके समय में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया गया हम बताते। 500 बार मंत्री गए हैं नॉर्थ ईस्ट, मैं भी गया था जब मंत्री था। प्रधानमंत्री जी, कितनी बड़ी बात है, 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट कहां से कहां विकास के पैमाने पर है, ये इनको पचता नहीं है। अरे कभी तो राष्ट्र हित में ऊपर उठिए, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्र हित की बात करना क्या करो, पीड़ादायक है। अपना एक डेलीगेशन वहां पे जाना चाहिए। आज की बैठक में आज इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहां डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। दिन भर हिली रीजन में, हिल एरिया में और वैली एरिया में दोनों जगह जो है 2-2, 3-3 रिलीफ का ये जो अभी जो रिलीफ कैंप्स वहां पे हैं, वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे जाएंगे, जायजा लेंगे। विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहां के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहां के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुंचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश। देखिए, पार्टी ने तय किया है, उसमें हम जा रहे हैं। करीब 20 सांसद विपक्ष के सारे इकट्ठे होके और वहाँ पे जाके देखेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बयान के बारे में आपने कहा, वो इस मुद्दे में असंवेदनशील हैं। यदि संवेदनशील होते तो इस तरह के बातें नहीं करते। दिल को दहलाने वाली इतनी बड़ी घटना हुई है मणिपुर में, वो भी कुकी जनजाति महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं सरेआम, और उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है और उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जबान नहीं खोल रहे हैं। The Manipur situation, we need to understand, is very complex. It's easy to bring out communal color to it and not communal but religious color to it, but you have to understand that this is a situation where two communities are involved, and of course in the process we have seen many people being affected, which is very unfortunate, but we should all try our best to find a way to find peace in Manipur, and I think that is what is important. They are more concerned about their image, and it is shameful that they are not concerned about the rape of those two women and many other women. So for everything for them is a conspiracy. But what about the violence which is continuing in Manipur? They are not able to control it, and deliberately they are not able to control it. So a new angle is given of conspiracy. How can you say it's a conspiracy when so many women have been raped? Thousands of arms have been looted, thousands of ammunition has been looted. It is your failure of your government. But because of that video, your image has been spoiled. You are worried about that only, and you're not showing that kind of anger towards what is happening in Manipur right now. चेयरमैन साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को आमंत्रित किया था। मैं और जयराम रमेश जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनका एक सद प्रयास है कि हाउस चले, मैं उनका आभारी हूं। परंतु सरकार
का एक रवैया ऐसा है कि जैसे उन्होंने ठान लिया है कि हंगामे में सब कुछ पास करो, वो चाहते ही नहीं। मैंने कुछ आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आए और उसके बाद उसका जवाब जो मंत्री चाहें, जितने लोग चाहे दें, लेकिन मणिपुर की घटना ऐसी है जिस पर सारा देश जानना चाहता है। Only now, probably after the announcement of the entourage by the opposition party, they might be deploying some forces there. But since 80 days, the whole state was burning, and even the chief minister was not aware of these things. He had given a statement that every day 120 incidents are happening like that. That itself is an evidential proof that law and order didn't exist, and it is sheer chaos. And we, all of us women, are outraged by the plight of our Manipuri sisters. इम्फाल ईस्ट में अभी वी हैव 37 रिलीफ कैंप्स जिसमें अराउंड 5,300 पीपल आर स्टेइंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। सो इनके लाइवलीहुड के लिए कई सारे गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, विभाग है, दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ टेकिंग अप अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, जैसे नरेगा, जैसे आरडी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर उनको स्पेशल जॉब कार्ड्स दिया गया है, एंड हर फैमिली के एक जने को जो द टाइम इन द कैम्प दे कैन बी स्पेंट मीनिंगफुली एंड नॉट आइडली। एंड यहाँ पे हमारे एक चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम है, उसके अंदर हर एक फैमिली को एक लाइवलीहुड बनाने के लिए a support of this rupees 50,000 up to rupees 50,000। मैं पूरा अपोजिशन का एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको जाना ही था इतना देर क्यों कर दिया आप लोग? ये तो 2 महीना आप लोग खुद बोल रहे हैं, जो 2 महीना हो गया उसका कुछ एक सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्यों इतना दिन तक आप लोग रुका था? आप लोग का इंटेंशन ये नहीं है जे मणिपुर का ऊपर आप लोग का, यू आर वेल विशर ऑफ मणिपुर, आप लोग का इंटेंशन पॉलिटिकल है। आप पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए आप मणिपुर में जा रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ ऑल ऑपोजिशन को, आप पॉलिटिक्स कीजिए, फिर दोबारा आप यहाँ आएगा, फिर एक नया वायलेंस शुरू होगा। Well, unfortunately, the human tragedy continues to unfold in conflict-hit Manipur. CNN News 18's Kamalika Sen Gupta gets us the ground reports and interviews for more on the situation in the state. Take a look. Their essence is they need peace. Obviously, the